Good afternoon, everyone. How are you all? I hope all of you are healthy, fit, and fine, practicing using different structures in terms of speaking, in terms of making different sentences. So, this is something you have to keep on doing, all right? So, always remember this point that here you are learning spoken English. So, when we talk about spoken English, it simply means that you have to speak as much as possible. You have to practice as much as possible. So you have to think of different sentences and different questions. You have to think of those possible different sentences. Okay. And you have to see that you are using different structures all the time. Okay. All the time you are using those different structures. So because as you are learning different structures, then you are getting all those structures. So it's important that you have the habit of using those structures related to asking questions, related to answering those questions. And if you have someone with who you can practice, then it's wonderful. Then there is uh, very, very important and very, very necessary that there is someone with you with who you can practice. You can ask that person can ask you. So that way you get the idea that what could be the possible questions, how to answer those questions. So when you get a lot of ideas in terms of understanding questions, in terms of asking questions, in terms of giving answers, so there you are getting into the habit of understanding, thinking, and then, of course, speaking. That is important. So everything is important here in terms that you are understanding. And after understanding, you are thinking. You are thinking. What do we mean by thinking? That at the time of listening to the question, you need to answer that question. And for that, you need to know, you need to understand how to answer that question, because question could be any question. It is not necessary that the question will come from this topic or that this structure, that structure. It could come from any structure. For example, someone could say that, do you have a pen? Someone could say that, are you in the classroom? Are you at home? Where were you yesterday? So there could be different questions according to the situations. So what is important that you are understanding those questions, and after understanding, having understood those questions, you are comfortably replying those questions, right? So you are super comfortable in terms of using different structures. So इसलिए ये point आपको हमेशा ध्यान में रखना है that जितना ज़्यादा आप यूज़ करेंगे लैंग्वेज को, जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, उतना ज़्यादा आप कंफर्टेबल होंगे एंड आपकी हैबिट होगी कि जो सेंटेंसेस हैं, जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, वो आपके हेड में बिल्कुल प्रॉपरली फिट हो गए, right? And whenever you need, whenever you require, you are using them comfortably. लेकिन स्टार्टिंग में ऐसा होने के लिए कि वो स्ट्रक्चर्स फिट हो जाएं, आप कंफर्टेबल हो जाएं, थोड़ा सा यू नीड एक्स्ट्रा एफर्ट्स फ्रॉम योर साइड, राइट? सो रिमेंबर दैट यू हैव टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट्स इन द स्टार्ट. Once you are comfortable, once you are able to use different structures properly, you have got the idea कि हमको कैसे use करना है, कैसे sentences हम क्वेश्चन अगर सुन रहे हैं तो कैसे हमको उनका आंसर देना है. सो स्टार्टिंग में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि कभी कुछ स्ट्रक्चर ध्यान में आ जाएगा, कभी कुछ क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, या क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा कि हमको कैसे पूछना है, या किसी ने क्वेश्चन पूछा तो उसका आंसर एकदम से क्लिक नहीं होगा, हाउ टू आंसर दैट क्वेश्चन. सो ऑल दीज थिंग्स विल हैपन, एंड ये होना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये नहीं होगा, इट सिंपली मीन्स कि हम नहीं समझ रहे हैं कि हमको फिर क्या करना है, क्या करेक्शन होना चाहिए, हाउ टू मेक डिफरेंट sentences related to different situations. So that's why it's important, right? So pay attention to all these different structures. And जैसे हर क्लास में बोला जा रहा है कि आपको प्रैक्टिस करने, जितने ज़्यादा स्ट्रक्चर्स आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, उतना ज़्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती रहेगी, एंड उतने ज़्यादा आप उस हैबिट में आ जाएंगे कि आप डिफरेंट स्ट्रक्चर्स यूज कर रहे हैं. ओके, सो ऑलवेज थिंक एंड ऑलवेज ट्राई टू यूज डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑल द टाइम. सो ऐसा नहीं कि सिर्फ हमको एक ही स्ट्रक्चर यूज करना है, बिकॉज स्पोकन है, कुछ भी यूज हो सकता है, एंड धीरे धीरे आपके पास ये स्ट्रक्चर्स बढ़ते जाएंगे.
जैसे स्टार्टिंग में हमने वर्ब टू बी से स्टार्ट किया, हमने थ्री पार्ट्स देखे, उनके स्ट्रक्चर्स देखे, समझे सेंटेंसेस, हाउ टू यूज देम, हाउ टू आस्क क्वेश्चंस। देन हमने पोजीशन देखा, उन स्ट्रक्चर्स को समझा, देखा कैसे यूज हो रहे हैं, किस तरह के सेंटेंसेस आ रहे हैं, कैसे आपको सेंटेंसेस फॉर्म करना है। ओके, एंड देन वी टॉक अबाउट देयर की बात हुई, फिर इट की बात हुई, फिर देन मॉडल वर्ब की बात हुई, उसमें थ्री पार्ट्स देखे। सो जैसे ये धीरे धीरे स्ट्रक्चर्स बढ़ेंगे, सो डेफिनेटली आपके पास सेंटेंसेस भी ज्यादा हो रहे हैं, सो यू आर गेटिंग वैरायटी, डिफरेंट वैरायटी मिल रही है आपको सेंटेंसेस की, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन यू विल यूज देम। सो इनमें समझने के बाद जब तक आप इनको यूज कर करके नहीं देखेंगे, यू विल नॉट बी कंफर्टेबल। सो कंफर्टेबल का मतलब ही यही है कि आप उनको इजीली यूज कर पा रहे हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। सो जैसे हमको सिचुएशन की रिक्वायरमेंट है, यू आर यूजिंग दैम, यू आर कंफर्टेबली यूजिंग दैम। ओके, सो फिर ऐसा कंफ्यूजन नहीं आ रहा है कि ये हैज क्यों है, हैव क्यों है, यहाँ पे वॉज क्यों है, यहाँ पे विल बी क्यों है, यहाँ पे डू क्यों है, यहाँ पे डस क्यों है। सो स्टार्टिंग में ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन अगर आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहेंगे तो फिर ये कंफ्यूजन भी चला जाएगा। एंड दैट्स व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट to keep on practicing. Okay, so I hope कि आप लोग खुद से भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, और अगर आपके फ्रेंड्स हैं तो आप उन लोगों से भी बात कर रहे हैं, उनको भी बता रहे हैं कि हमारी ये लर्निंग हो रही है, हम ये लर्न कर रहे हैं। और अगर आपके फ्रेंड्स आपके साथ ही लर्न कर रहे हैं, सो देन दैट इज वंडरफुल, क्योंकि फिर आपके पास कोई पार्टनर है, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस विद दैट पर्सन। ओके, सो ये आपको करते रहना है। एंड हो सकता है अभी आप लोग के एग्जाम्स आने वाले हैं, तो आप लोग उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। फोकस करिए, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ओके, क्योंकि हमको स्कोर करना है एग्जाम्स में। लेकिन थोड़ा सा 10-15 मिनट्स, राइट, 10-15 मिनट्स निकालिए। 10-15 मिनट्स निकाल के जितने भी आप स्ट्रक्चर्स को यूज कर सकते हैं, या मेक सम सेंटेंसेस, आस्क सम क्वेश्चंस, ओके, ओनली डू दिस थिंग, ओके, फॉर 10-15 मिनट्स। उससे ये होगा कि आपकी वो हैबिट रहेगी यूज करने की, राइट। सो आप आउट ऑफ प्रैक्टिस नहीं हो। सो आउट ऑफ प्रैक्टिस का होने का मतलब ये है कि आपने ये जो, फॉर एग्जाम्पल आज हमारा 20th डे, सो ये जो आपने 19 डेज तक आपने समझा, यूज कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, अब हम वो आउट ऑफ प्रैक्टिस हो जाएंगे तो फिर से वही सिचुएशन आ जाएगी कि डे वन वाली, राइट, क्योंकि आप प्रैक्टिस से आउट हो गए। सो इसलिए प्रैक्टिस करते रहना इम्पोर्टेंट है। ओके, सो 10-15 मिनट्स काफ़ी होंगे अभी, एंड जैसे आपके एग्जाम्स हो जाएं एंड देन यू हैव फ्री टाइम, तो फिर देन बढ़ा दीजिए टाइम। ओके, एंड फिर 1 hour 30 minutes, राइट, देन इट डिपेंड्स ऑन यू, व्हेन यू आर फ्री, यू हैव टाइम। ओके, सो चलिए अभी हम कंटिन्यू करेंगे। आज हमने जो लास्ट क्लास में सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट जो हमने स्टार्ट किया है टॉपिक, एंड दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। ओके, एंड because it is important because this structure is used a lot for many different sentences, and इसमें थोड़े से ज़्यादा चेंजेस भी हैं। जैसे लास्ट क्लास में हमने कुछ चेंजेस देखे, राइट, के सेंटेंसेस में चेंजेस आ रहे हैं। ओके, सो यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। Okay, and I'm sharing my page with you. All right, here it is on your screen. So today is day 20, and आपको अपनी एनालाइज करते रहना है अपनी जर्नी, लर्निंग जर्नी को। ये एनालाइज इसलिए कि आपको समझ में आए कि हमने जो स्पेंड किया है टाइम, हमने कितनी लर्निंग करी। क्योंकि ये भी हो सकता है कि आप ये देखें कि हमने इतना टाइम स्पेंड किया, समझा, लेकिन हमारा वो कंफर्ट लेवल नहीं है जो होना चाहिए था, तो उससे आपको थोड़ा सा ये हिंट मिलेगा कि नहीं, अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस और करनी है, अभी थोड़ा सा और टाइम स्पेंड करना है, अभी क्लियर नहीं हुई है चीज़ें। तो ये समझने के लिए आपको इस पे भी फोकस रहना है कि आपने कितने डेज स्पेंड किए, आपकी लर्निंग क्या चल रही है। सो एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आपका जो गोल है वो आप देख सकें कि मेरा गोल ये था कि इतने दिन में मैं इन सारे स्ट्रक्चर से कंफर्टेबल हो जाऊं, हुआ नहीं हुआ। ओके, अगर नहीं हुआ, सो देन यू हैव टू गो बैक एंड देन यू हैव टू again watch and practice, and if you are comfortable, then that's wonderful. All right,
सो चलिए, लेट्स कंटिन्यू विथ सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट डेफिनेट सेंटेंसेस, जहाँ पे हम लास्ट क्लास में देख रहे थे कि ये जो सेंटेंसेस हैं किन सिचुएशन में यूज होते हैं। सिचुएशन को समझना भी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज सिचुएशन आपने समझ ली, सो सिचुएशन आपको हेल्प करेगी कि फिर आपको हिंदी में नहीं सोचना है, राइट। एंड इसलिए हम सिचुएशन समझते हैं हर स्ट्रक्चर में। ये बात समझना इम्पोर्टेंट है कि किस सिचुएशन में वो यूज हो रहा है, क्या ऐसी सिचुएशंस होती हैं या किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पे हम इनको यूज करते हैं, राइट। सो ये समझना जरूरी है। हैबिट्स, रूटीन्स, जो ऐसी चीज जो हमेशा होती है, फादर हमेशा ऑफिस जाते हैं, राइट, आप हमेशा स्कूल जाते हैं, सो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू रूटीन, ओके, रिलेटेड टू हैबिट। ओके, सो यहाँ पे इस तरह की सिचुएशन में हम सेंटेंसेस यूज कर रहे हैं। एंड जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था कि वर्ब जो है उनमें हम SES IES लगा रहे हैं, एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम ये चेंजेस कर रहे हैं। ओके, सो यू नीड टू मेक ऑल दीज चेंजेस विद सिंगुलर सब्जेक्ट। सो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पॉजिटिव सेंटेंसेस यूज हो रहे हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट यूज हो रहा है, किस तरह की सिचुएशन चल रही है, हैबिट से रिलेटेड, रूटीन से रिलेटेड। एंड वहां पे जब सिंगुलर सब्जेक्ट यूज हो रहे हैं, वी नीड टू ऐड समथिंग इन दी वर्ब फर्स्ट फॉर्म। Okay, something, it means SESIS, so that your spellings are not incorrect. When you are making sentences, your sentence is correct. So for example, if you are saying Rahul and you say Rahul watch TV, okay, so this is not correct sentence. Why? Because you are using watch. What you have to do, you have to add ES. Rahul watches TV, he goes to school, she plays hockey, she cooks food. So everywhere in the verb first form, according to the word, right, you will add some. एंड कहाँ पे क्या ऐड करना है, लास्ट क्लास में हमने ये देख लिया था। ओके, एंड अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप देखिए, लास्ट वाला वीडियो देखिए, डे 19 का वीडियो देखिए, वहाँ पे एक्सप्लेनेशन आया है कि कहाँ पे हमको ES ऐड करना है, कहाँ पे IES ऐड करना है। वो आप एक्सप्लेनेशन देख लेंगे, सो इट बिकम्स इजियर फॉर यू समझना कि ये क्या SES IES वाला क्या एक्सप्लेनेशन। सो यहाँ पे किस तरह के सेंटेंसेस आ रहे हैं, यहाँ पे सेंटेंसेस आएंगे सिंपल सेंटेंसेस रिलेटेड टू हैबिट्स, रिलेटेड टू रूटीन। दीज आर सम एग्जांपल्स। यू आल्सो थिंक अबाउट योर एग्जांपल्स। आप भी ऐसे एग्जाम्पल्स सोचिए कुछ, राइट। तो कुछ डिफरेंट वोकेबलरी ले लीजिए, वर्ब्स ले लीजिए, एंड उनको यूज करके देखिए सेंटेंसेस में। एंड यू हैव टू यूज सिंगुलर सब्जेक्ट। ओके, सिंगुलर सब्जेक्ट तो हमको पता है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट में कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि व्हाट डू वी मीन बाय सिंगुलर सब्जेक्ट। सो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको यूज करने हैं सेंटेंसेस। सो यू आर सेइंग शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही वॉचेस टीवी डेली, रवि गोज टू स्कूल डेली। So such kind of sentences are coming, and you can use any verb here, right? So we are using get up, watch, go, work, write. So you are adding something because this is about singular subject. Okay, so singular subject ke saath, all these are positive sentences. You can think of any other word. Okay, for example, speak. So you will say, my mother speaks English. My mother speaks Hindi. My father goes to office. My brother rides a bicycle. So you can think of any sentence. Okay, कोई भी sentence सोचिए, verb वहां पे होगा, and then you need to add something in that verb. And कहाँ something का मतलब क्या है कि कहीं पे S, कहीं पे ES, कहीं पे IES। वो आप जो हमने लास्ट क्लास में एक्सप्लेनेशन देखा था कि कहाँ पे क्या ऐड करना है, बस उसको यूज करके वो आप ऐड कर लेंगे, and then you are making simple sentences. So these are related to sentences. Now, what is the important point about these sentences, that you know in which situation they are being used. Okay, so situation is also important, that okay, for this situation we are making these kind of sentences. All right. Now let's see that when you make sentences with plural subject, अभी जो जितनी बातें हो रही थी लास्ट क्लास में, जो बात हुई थी सिंगुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड बातें हुई, एंड वहां पे हमने ये समझा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या चेंजेस होना है जो इम्पोर्टेंट है व्हेन यू मेक सेंटेंसेस रिलेटेड टू रूटीन्स, हैबिट्स। ओके,
अब next point is when you are making positive sentences and you want to use plural subject, okay, you want to make sentences with plural subject, then there is a small change. और ये change बहुत easy है, right? Easy to understand. Why is it easy to understand? Because here you don't have to add anything. आपको वो आपके फर्स्ट फॉर्म में कुछ भी ऐड नहीं करना है. सो प्ले विल रिमेन प्ले, स्पीक विल रिमेन स्पीक, गेट अप फॉर एग्जाम्पल. ओके, सो यहाँ पे हमने कुछ वर्ड्स ले लिए हैं, वर्ब्स ले लिए हैं. तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि इनमें कुछ भी ऐड नहीं हो. ओके, सो यू विल यूज देम एज इट इज. आप इनको एज इट इज यूज कर रहे हैं. क्यों यूज कर रहे हैं? बिकॉज यहाँ पे हमने सब्जेक्ट चेंज कर दिया. सो इट डिपेंड्स ऑन द स्पीकर. स्पीकर के ऊपर डिपेंड करता है, राइटर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको क्या यूज कर, राइट? वो किस बारे में, किस पर्सन के बारे में, किस सब्जेक्ट के बारे में सेंटेंस यूज करना चाहता है. सो जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो, उनमें जो चेंजेस आ रहे हैं वो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आते हैं. और बस हमको यही बात ध्यान में रखनी है कि किस सिचुएशन में किस सब्जेक्ट के साथ क्या चेंजेस होना है. वंस यू आर कंफर्टेबल, वंस यू नो वेरी वेल, राइट, फिर आप जब धीरे धीरे उनको यूज करते रहते हैं तो फिर वो ऑटोमेटिक हो जाता है, नेचुरल हो जाता है. Then when you think, when there is a situation when you have to say something, it comes out automatically. फिर वो ऑटोमेटिकली आता है. लेकिन स्टार्टिंग में आपको ये थोड़ा अपनी हैबिट डाल यूज करने की. ओके, सो जैसे हम देख रहे हैं कि कितने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, कितने सारे स्ट्रक्चर्स हैं, तो सिचुएशन को ध्यान रख के आप जब यूज कर रहे हैं उनको, तो वो फिर नेचुरल हो जाते हैं. ओके, इसलिए यहाँ पे जो प्रैक्टिस की बात होती है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है. ऑलराइट, सो किस तरह के यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, किस तरह के सेंटेंसेस आ रहे हैं यहाँ पे. अगर हम प्लूरल सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, ओके, अब प्लूरल से तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. ओके, अगर अगेन this is your first time that you are watching this video and you have some confusion related to subject, plural subject, then go back to previous videos, watch those videos, understand what do we mean by this. Okay, so यहाँ पे plural subject we are not adding anything in verb. Okay, so verb is coming as it is verb आ रहा है, without as, without es, without is. Okay, so यहाँ पे कैसे sentences आ रहे हैं? I get up, I get ready, we watch TV. क्या हम ऐसे बोल रहे हैं वी वॉचेस? नो, वी विल नॉट से. क्यों नहीं बोलेंगे? बिकॉज वी आर यूजिंग प्लूरल सब्जेक्ट. इफ यू से दे गो, विल यू से दे गोज? नहीं, ऐसे क्यों नहीं बोलेंगे? बिकॉज वी आर यूजिंग दे, वी कंसिडर इट एज प्लूरल, दे गो, सो दैट्स व्हाई दे गो, राइट? if but if you are using singular subject, he, Rahul, she, Rita, right, Geeta, my mother, my sister, then goes. Okay, then goes, otherwise go. सो ये एक सिंपल सा डिफरेंस है. ओके, ये सिंपल से चेंजेस हैं जो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है. एंड इन्हीं से बस सेंटेंसेस करेक्ट या रॉन्ग हो जाते हैं. ओके, यही अगर आपने स्मॉल चेंज को मिस कर दिया, स्किप कर दिया, अगर भूल गए आप, ओके, सो यहीं से सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा, राइटिंग में भी हो जाएगा. एंड इफ यू आर स्पीकिंग, इफ यू आर टॉकिंग टू समवन एंड यू से दे गोज टू स्कूल, then it's a wrong sentence. Why? We don't need to add anything here, right? Because you are using they. They go to school daily. Okay? You always help me. All right, you always help me, but she always helps me. He always helps me. Rahul always helps me. My friend, if you are talking about one friend, my friend always helps me. But if you are talking about a lot of friends, okay, so you have 3 friends, 4 friends, and you are saying, my friends always help me. Okay, so na small sa change hai. And once you take care of this change, you are comfortable with such kind of sentences. And ये sentences, इस तरह के sentences use कितने होते हैं daily routine में, day to day conversations में, day to day activities में. ऐसे sentences use normally होते रहते हैं. Okay, so you should be comfortable with all the different sentences, all the structures. Okay, यहाँ पे ये जो ऑलवेज आ रहा है इससे कंफ्यूज नहीं होंगे. ये नहीं सोचेंगे कि इसमें एस लग रहा है. ओके, दिस इज एडवर्ब, ये तो एडवर्ब है. ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज. ओके, यहाँ पे हेल्प जो है वो हमारा वर्ब का रोल प्ले कर रहा है. हेल्प नाउन भी है,
सो यू कैन ऑल्सो यूज नाउन फॉर्म में भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको पता है दैट इन सच सेंटेंसेस हम वर्ब्स यूज करते हैं, सो हेयर हेल्प इज वर्ब। ऐसे काफी सारे वर्ड्स हैं जो नाउन भी होते हैं, जो वर्ब भी होते हैं। सो डेफिनेटली उसका भी हमको ध्यान रखना है कि कौन सा वर्ब हम एज ए वर्ब यूज कर सकते हैं, उसको हम एज ए नाउन भी यूज कर सकते हैं। तो ये सब सारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एंड फिर ये अंडरस्टैंडिंग से थोड़ा सा कंफ्यूजन कम हो जाता है, कंफ्यूजन से हम बच जाते हैं। सो ऑलवेज से कंफ्यूज नहीं होंगे। डोंट थिंक कि यहाँ पे इसमें एस लगा है सो समथिंग इज देयर, नो, इट इज एडवर्ब एंड ये अलग ही बात है, राइट। ऑलवेज इट मीन्स हमेशा, यू ऑलवेज हेल्प। ओके। सो यहाँ पे प्लूरल जो स्ट्रक्चर है प्लूरल सब्जेक्ट्स का, वो सुपर इजी है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, बिकॉज यहाँ तो डायरेक्ट सेंटेंसेस आ रहे हैं। ओके। सो यहाँ पे वर्ब्स के फर्स्ट फॉर्म्स यूज हो रहे हैं। ओके। सो अभी तक हमने क्या समझा? अभी तक हमने ये समझा कि ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस हैं, इनमें दो तरह के सेंटेंसेस आ रहे हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस। एक आ रहे हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जहाँ पे चेंजेस हैं। ओके, क्या चेंजेस हैं? आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस, ई एस, आई एस ऐड करना। कहाँ पे ई एस, कहाँ पे आई एस, ये हमने समझ लिया है, तो कोई डिफिकल्टी नहीं है, राइट। सुपर इजी, कहाँ पे क्या ऐड करना है, इजी टू अंडरस्टैंड। ओके। फिर हम पॉजिटिव सेंटेंसेस बना रहे हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, एंड देयर वी नो कि यहाँ पे तो कोई चेंज ही नहीं है। यहाँ पे तो सिंपली हमको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है एज। ओके। सो क्लियर है ये पॉजिटिव सेंटेंसेस? ओके। अगर कोई कंफ्यूजन है देन यू नीड टू आस्क। ओके, यू नीड टू आस्क। एंड अगेन इम्पोर्टेंट पार्ट यही है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, ओके, उतना ज़्यादा क्लियर होगा, उतना ज़्यादा क्लैरिटी आएगी कि कहाँ पे हमको क्या यूज़ करना है। चलिए, गुड। अब जल्दी से एक छोटी सी एक्सरसाइज आई वांट यू टू पे अटेंशन टू। लेट मी ओपन दैट पेज। Okay, here I am sharing page with you, and I quickly tell you what you have to do here. So यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ वर्ड्स है। ओके, सो यहाँ पे इन वर्ड्स में आपको क्या करना है? एज यू आर सेइंग, राइट द वर्ब्स इन द थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन इट मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट। सो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है? यू आर सीइंग सम वर्ड्स हियर, अराउंड 12 वर्ड्स। जैसे आपको समझ में आ रहा है, ऑल ऑफ देम आर वर्ब्स, सारे वर्ब्स हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि जैसे हमने अभी समझा कि पॉजिटिव सेंटेंसेस जब बना रहे हैं हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में है वी ऐड समथिंग, एस, ई एस, आई एस। तो यहाँ पे अब आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग चेक करनी है कि जब आप स्पीक एज ए वर्ब यूज कर रहे हैं एंड यू आर यूजिंग सिंगुलर सब्जेक्ट, व्हाट विल यू ऐड? विल यू ऐड एस, ई एस और आई? सो यहाँ पे बस ये इजी सी अंडरस्टैंडिंग चेक करनी है अपनी। देर आर सम 12 वर्ड्स। ऐसे तो वर्ब्स तो काफी सारे हैं। ओके, सो जितने भी ऐसे कॉमन वर्ब्स हैं जो नॉर्मली हम यूज करते हैं डे टू डे कॉन्वर्सेशन में, डे टू डे एक्टिविटीज में, एटलीस्ट उन सारे वर्ब्स की हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए रिलेटेड टू कि कहाँ पे हम क्या ऐड करना है, राइट। एस, ई एस, आई एस, बिकॉज स्पेलिंग्स मिस्टेक्स होने के भी चांसेस होते हैं। Okay, so once you know how to use them, then use it. Okay, so for example, arrive, live, have, fly, carry, teach, do, say, drink, go, play. So just for practice कि यहाँ पे आप singular subject के according if you are making a sentence, and best part तो यही होगा कि इस word को use करिए आप अपने sentence में. So make a complete sentence with the help of singular subject. Okay, so for example, if there is a word right, okay, right अगर कोई verb है, use it in your sentence. For example, he writes very well. Okay, so आपने क्या बोला? He writes very well. My sister writes very well. My brother writes very well. So think of any sentence and जल्दी से उसको यहाँ पे यूज करके देखिए। ओके, यूज करेंगे एंड यहाँ पे एक छोटा सा जो पॉइंट है वो है हैव से रिलेटेड। ओके, हैव जो यहाँ पे यूज हुआ है, हैव के काफी सारे यूजेस हैं।
हैव आपने देखा हमने पोजीशन में भी यूज करा, लेकिन वहां पे उसका रोल डिफरेंट था। हमने हैव हैज मॉडल वर्ब हैव टू यूज किया, वहां पे उसका रोल डिफरेंट था, वो एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा था, राइट। यहाँ पे जो हैव आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये मेन वर्ब है, राइट। सारे ही वर्ड्स यहाँ पे मेन वर्ब है, हैव भी मेन वर्ब है। एंड यहाँ पे किस सेंस में यूज हो रहा है हैव हम यूज करते हैं खाने पीने के सेंस में, ओके। सो जब सारे ही वर्ड्स देख रहे हैं, ये आप प्लूरल फॉर्म में है, राइट। एंड आप इसमें कुछ ऐड करके, आप उसमें एस ई एस आई एस ऐड करके उनको सिंगुलर बना देते हैं सब्जेक्ट से, ताकि वो मैच हो जाए, ओके। लेकिन यहाँ पे हैव में क्या हम इसमें एस ई एस या आई एस लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हैव का सिंगुलर फॉर्म हैज है, ओके। सो ये आपको ध्यान रखना है कि हैव का सिंगुलर फॉर्म यहाँ पे हैज हो। सो कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, ओके, जहाँ पे एकदम से कोई चीज एकदम से डिफरेंट निकल के आ जाती है, ओके। सो यहाँ पे हैव से एक एग्जांपल है जो कि बिल्कुल डिफरेंट है। नो एस, नो ई एस, नो आई एस, इसका सिंगुलर फॉर्म है हैज, ओके। सो जब आप इसको यूज कर रहे हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, तो आप इसको हैज यूज करेंगे। किस सेंस में यूज करेंगे? In terms of food, okay, in terms of breakfast, in terms of lunch, in terms of dinner, उस सेंस में यूज करेंगे, ओके। यूज करके देखेंगे, माई मदर, ओके, माई ब्रदर, माई सिस्टर, विथ सिंगुलर सब्जेक्ट, एंड व्हेन यू आर यूजिंग इट यू विल यूज हैज, बिकॉज हैज इज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ हैव, ओके। बाकी सारे वर्ड्स तो इजी, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट ये देखिए कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ओके। इन एग्जाम्पल्स में आपको सिंपली क्या करना है, इन एग्जाम्पल्स में आपको पढ़ के जो बोल्ड में आपको वर्ब्स दिख रहे हैं, वो आपको सिंपली चूज करना है, ओके। दैट विथ दिस सब्जेक्ट व्हाट विल कम, ओके। इफ प्लूरल सब्जेक्ट इज देयर, वी इज देयर, सो विल प्ले कम और प्लेस कम। सुपर इजी, ओके। सो जल्दी से अपनी अंडरस्टैंडिंग चेक कर लेंगे कि आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है। कंफ्यूजन है, ओके, क्वेश्चन है, देन यू नीड टू आस्क, ओके। एंड आई डोंट थिंक कि कोई यहाँ पे कंफ्यूजन क्वेश्चन होगा, बिकॉज इजी टू अंडरस्टैंड। सिर्फ हम किस पे ध्यान दे रहे हैं? हम सब्जेक्ट पे ध्यान दे रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो चेंजेस होना चाहिए वो होना चाहिए, राइट। सो यहाँ पे सिर्फ आपको ऑप्शन करेक्ट चूज करना है। जो बोल्ड में हमको दो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं स्लैश के साथ, वो आपको उसमें यू हैव टू पिक द करेक्ट वन, okay, you have to pick the correct one and you have to see what is the sense coming out. So जब भी आप कोई सेंटेंस देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, ओके, सो उसका क्लियर सेंस आपको समझना है, that what is the meaning of this sentence, okay, if I am reading this sentence, what is the sense coming out, okay, don't guess, गैस नहीं करना है अभी, बिकॉज यू आर ऑलरेडी लर्निंग। सो जब आप लर्न कर रहे हैं तो यू डोंट हैव टू गैस, फिर गैसिंग का ऑप्शन नहीं है। हाँ, अगर कोई ऐसा सेंटेंस आ गया दैट यू आर रीडिंग समथिंग एंड यू डोंट नो, एंड वहाँ पे गैसिंग हो सकती है, ओके। लेकिन यहाँ पे बिकॉज यू आर लर्निंग, सो वाई टू गैस, बिकॉज व्हेन यू नो, राइट। सो यहाँ पे सी द सेंस, व्हाट इज द सेंस कमिंग आउट, ओके, व्हाट इज द सेंटेंस टॉकिंग अबाउट, ओके। सो जल्दी से ये सेंटेंसेस कर लेंगे, ओके। एंड I don't need to tell you anything, right? Because these sentences are super easy. You know, this is all about singular plural subject. So इन sentences से भी आपको hints मिलेंगे, ideas मिलेंगे कि हमको sentences कैसे try करना है. Okay, all right, got it. चलिए ठीक है। सो ये हमारे जो पॉजिटिव सेंटेंसेस हमने देखे, दो तरह के सेंटेंसेस देखे, पॉजिटिव सिंगुलर सब्जेक्ट जहाँ पे चेंजेस हैं, एंड प्लूरल सब्जेक्ट जहाँ पे चेंजेस नहीं है, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग आप यहाँ पे चेक कर लेंगे, ओके। एंड इफ देयर इज क्वेश्चन देन यू विल आस्क, ऑलराइट। चलिए अब हम ये देखते हैं कि ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस हैं, जिनको हम सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं, जिसमें बात हो रही है कि ये हैबिट्स के बारे में बात करते हैं, ये रूटीन के बारे में बात करते हैं, ओके। सो अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि इफ समवन वांट्स टू टॉक अबाउट हिज और हर डेली रूटीन, ओके, अगर किसी को अपने रूटीन के बारे में बात करना है, व्हाट डू वी मीन बाय रूटीन? रूटीन,
दिस इज समथिंग दैट यू डू ऑन डेली बेसिस। कोई भी जो डेली बेसिस पे जो काम करता है, राइट, उसको उस रूटीन बोल देते हैं, या हम ऐसे भी बोल देते हैं कि ये उसकी हैबिट है कि वो सुबह इतने बजे उठता है, राइट, उसकी हैबिट है कि वो फिर एक्सरसाइज करता है, उसकी हैबिट है कि वो इवनिंग में अपने फ्रेंड्स के साथ खेलता है। सो ऑल सच सेंटेंसेस that give the idea related to habits, routine, something a person does on daily basis, ये सारे सेंटेंसेस हैबिट एंड रूटीन्स की कैटेगरी में चले जाते हैं। एंड कैसे हमको यूज करना है सेंटेंसेस, जैसे अभी हमने दो स्ट्रक्चर्स देखे, राइट, पॉजिटिव सेंटेंसेस, सो यहाँ पे हम सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं। हाउ विल यू मेक दोज पॉजिटिव सेंटेंसेस इफ यू आर टॉकिंग अबाउट योर डेली रूटीन? सो जस्ट क्विकली थिंक अबाउट योर डेली रूटीन कि आपका डेली रूटीन क्या है। एंड दिस इज इम्पोर्टेंट दैट यू शुड talk about your daily routine very comfortably. If someone asks you, अगर कोई आपसे पूछता है कि ओके टेल मी योर डेली रूटीन, आप डेली बेसिस पे क्या क्या करते हैं, ओके, सो देन यू हैव टू टॉक अबाउट दैट कंफर्टेबली। एंड सुपर इजी है, कैसे यूज कर लेंगे, बिकॉज जहाँ पे जितने भी सेंटेंसेस आएंगे, ओके, वो आर यू गेटिंग द आइडिया कि किस तरह के सेंटेंसेस आएंगे। इसी तरह से सिचुएशन ये भी हो सकती है कि कोई आपसे पूछ ले कि ओके व्हाट इज योर फादर्स डेली, ओके, व्हाट इज योर ब्रदर्स डेली, आपके ब्रदर डेली बेसिस पे क्या करते हैं, आपके एल्डर ब्रदर या आपकी यंगर सिस्टर क्या करती हैं, ओके, सो उस सिचुएशन में फिर आपके थोड़े से सेंटेंसेस चेंज हो जाएंगे। क्यों चेंज हो जाएंगे बताइए? क्योंकि सब्जेक्ट चेंज हो गया है, राइट। देन यू आर टॉकिंग अबाउट योर सिस्टर, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ देन यू विल से आई, okay, when you are talking about your brother you will say he, okay, my brother Rahul, then he. If you are talking about your sister then she, right? So subject, okay, pay attention to your subject and according to the subject make changes, क्योंकि यहाँ पे present indefinite में changes हैं। okay, चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं एंड फ्रॉम दिस एग्जाम्पल यू विल गेट द आइडिया कि हमको डेली रूटीन में क्या ध्यान देना है। सो ये जो एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, इन द सेम वे यू विल थिंक अबाउट योर डेली रूटीन एंड इट वुड बी बेटर इफ यू राइट योर डेली रूटीन ऑन अ पीस ऑफ पेपर। अपना डेली रूटीन पीस ऑफ पेपर पे लिखेंगे इस एग्जाम्पल को समझने के बाद, पढ़ने के बाद, ओके, एंड लिखने के बाद रीड दैट डेली रूटीन ट्वाइस थ्राइस, दो तीन बार पढ़िए उसको, राइट, चेक योर सेंटेंसेस, अंडरस्टैंड कि आपने कुछ मिस तो नहीं किया, जो आप डेली बेसिस पे करते हैं उसको ऐड कर लीजिए, ओके, एंड देन ट्राई टू से दैट विदाउट रीडिंग, ओके, फिर विदाउट रीडिंग उसको यूज करेंगे आप। And when you are talking about your daily routine, then it would be wonderful if you record yourself, okay? And record करके फिर उसको सुनिए and then listen to your daily routine कि यही अगर आप किसी को बताएंगे तो वो कैसा साउंड कर रहा है, ओके? क्या आप बताना चाहते हैं, वही सेंटेंसेस आ रहे हैं, उनमें कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है, ओके? सो पे अटेंशन टू दैट। ओके, सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डेली रूटीन। यहाँ पे दोनों एग्जाम्पल्स हैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कैसे सेंटेंसेस में चेंज हो जाएगा अगर हम प्लूरल सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं या सिंगुलर सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं। सो ऑन माय लेफ्ट हैंड साइड यू हैव द एग्जाम्पल वेयर समवन इज टॉकिंग अबाउट his daily routine using I. Okay, so let's say I am talking about my daily routine. So I will make sentences like these. I get up early or I wake up early. Get up, wake up both are same. कुछ भी हम use कर सकते हैं। I get up early in the morning. Time दे दीजिए if you want to give the time. So जो changes आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं because this is the exam. Okay, and let's say on my right hand side this is the example where let's say कि मैं अपने ब्रदर का या राइट ब्रदर का डेली रूटीन शेयर कर रहा हूँ, तो देन आई से ही गेट्स अप, ओके, एंड अगर सिस्टर होती तो देन शी हो जाता, राइट, शी गेट्स अप। सो ये जो कॉमन से चेंजेस हैं वो तो हमको समझ में आ रहा है, हमको क्या करना है इसमें कंफ्यूजन नहीं है, ओके। सेकंड पार्ट जो है, देन आई फ्रेशन अप इट सिंपली मींस दैट आई ब्रश माय टीथ, आई टेक अ बाथ, आई टेक अ शावर, आई वॉश माय हैंड्स, आई वॉश माय फेस, एवरीथिंग, ओके, सो एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस वर्ड। सो फिर हमको अलग से बोलने की जरूरत नहीं है कि देन आई
टेक अ शावर, ओके, और आई ब्रश माई टीथ, ये सारी चीजें बोलने की प्लेस पे यू हैव सिंपली सेड आई फ्रेशन अप. But if you are talking about your father, brother, sister, then you say he freshens up, she freshens up. Okay, then my sister freshens up. So इसी के अकॉर्डिंग सारे sentences आ जाएंगे. And quickly read these sentences, understand them. दोनों sentences use करके देखिए, पढ़ के देखिए, and खुद से भी try करके देखिए. खुद से कैसे ट्राई करके देखना है कि यहाँ पे आपको आइडिया मिलता है कि किस तरह से सेंटेंसेस आ रहे हैं, क्या सेंटेंसेस हो सकते हैं. अब ऑफ कोर्स आपका डेली रूटीन थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, उसी के अकॉर्डिंग आप उसमें सेंटेंस ऐड करेंगे. Okay, and it would be wonderful if you share your daily routine in the comment section, right? Think of your daily routine and type your daily routine and post that in comment section. You can do that, right? एंड खुद से आप डेली रूटीन की प्रैक्टिस करेंगे standing in front of mirror. Okay, so stand in front of mirror and share your daily routine. Okay, once you have done that, then talk about someone else's daily routine. So possibly your fathers, your brothers, your sisters, just to see that what kind of changes come when you make sentences with singular subject. Because when we talk about present indefinite, so यहाँ पे ये जो changes हैं, these are important changes. And of course, ये practice से ही ध्यान में रहें. अगर आप sentences को use करेंगे, बार बार बोलेंगे, तो it means you are using them, you are practicing them, and then you will be comfortable with all these sentences. ओके, सो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको अपना डेली रूटीन शेयर करना है, राइट? इफ यू हैव समवन विथ यू, यू कैन शेयर योर डेली रूटीन विद दैट पर्सन, और वो आपको डेली रूटीन शेयर कर लें. So you will get the idea that how sentences are coming. Okay, and if you are alone, if there is no one, then you can practice by yourself. And how will you do that? Just stand in front of mirror and share your daily routine. Okay, I get up early in the morning at 6 o'clock, then I freshen up. After that, I get ready or I go for a walk, right? It could be anything. अब कुछ भी हो सकता है, right? सबका डेली रूटीन में थोड़ा सा चेंज हो सकता है. उस चेंज के अकॉर्डिंग try to make a sentence and record yourself. Okay, record yourself and then उसको फिर से सुनिए, right? सुन के देखिए कि कैसे आ रहा है आपका डेली रूटीन. Right, if you think that you need to change something, कुछ change करना है, then do that again. Okay, so practice like that. And for a few days keep on practicing your daily routine. ऐसा नहीं है कि हमने एक बार बोल दिया तो then it's okay, right? ओके इसलिए नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल आपने एक बार ट्राई करके देखा, ट्राई हो गया, एंड देन यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग. वंस इन अ वाइल यू नीड टू प्रैक्टिस, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल वीक में एक बार रिपीट कर लिया. ओके, स्टार्टिंग में यू हैव टू रिपीट अ लॉट, बिकॉज लैंग्वेज इज ऑल अबाउट जितना ज़्यादा रेपिटिशन होगा उतना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी, और उतना ज़्यादा आप हैबिचुअल हो. हैबिचुअल इन टर्म्स ऑफ यूजिंग सेंटेंसेस, इन टर्म्स ऑफ मेकिंग सेंटेंसेस. ओके, सो ये आप कर लेंगे. ओके, एंड कर लेंगे इट मीन्स यू हैव टू डू इट. ओके, करके देखना है आपको कि यहाँ पे आपकी फिर अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो. ओके, सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस की, एंड यहाँ पे आपने एक इम्पोर्टेंट सा देखा कि सिचुएशन के कहाँ पे इस तरह के सेंटेंसेस यूज हो रहे हैं. सो आप देखें कि जब आप डेली रूटीन की बात कर रहे हैं, सो डेली रूटीन की बात करते वक्त आप सारे सेंटेंसेस यूज कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्प लेके. You are talking about something that you do on daily basis. You are talking about your habits. Okay, so for example, it could be any sentence that he watches TV in the evening, he completes his homework, or she completes her homework in the evening. She completes her homework at 6 o'clock. She goes to coaching and there she completes her homework. So it could be any sentence, right? वो आपको check करना है use कर करके. So you have to think and then you have to make sentence. You have to think and then you have to try. Okay, so let's say ये जो आपने different structures किए हैं, जैसे अभी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट कर लिया, इससे पहले दूसरे स्ट्रक्चर्स भी किए हैं. जब आप किसी बारे में बात करेंगे तो ये सब स्ट्रक्चर्स मिक्स होते हैं, राइट? मिक्स होके ही हम किसी बारे में बात कर
सकते हैं। ऐसा नहीं कि किसी सिचुएशन पे बात हो रही है तो आप सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर यूज करें। सो इसलिए आपको प्रैक्टिस हर स्ट्रक्चर की करनी है। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग, यू आर थिंकिंग समथिंग, यू आर मेकिंग डिफरेंट सेंटेंसेस। एंड जब यू आर मेकिंग डिफरेंट सेंटेंसेस तो डेफिनेटली वहाँ पे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आएंगे, एंड वो आ रहे हैं, इट मीन्स यू आर प्रैक्टिसिंग। सो वो एक नेचुरल प्रैक्टिस हो रही है। So that's why it's important that you have to think and you have to say something about any situation. For example, if you think of a sentence, my father is in the office. Okay. My father is in the office. He goes to office daily. Okay. What kind of sentences are coming? Pay attention. My father is in the office, verb to be sentence. He goes to office daily, present indefinite sentence. He was not in the office yesterday. For example, okay, he was not in the office yesterday. He was at home. Okay, past related sentence. Tomorrow he has to go to office, or tomorrow he doesn't have to go to office. This is modal verb related sentence. Okay, so you have to think a lot, right? And you have to practice this way. So when you think, then definitely you would be able to make different sentences. जितना ज़्यादा आप सोचेंगे when you are with your friend, or you ask your friend, okay, let's practice. Or if there is no one, then you are alone, right? Just talk to yourself. Think of different sentences. Think of different sentences, make questions, use different sentences, use different situations. जितना ज्यादा situations यूज करेंगे, different sentences यूज करेंगे, उतना ज्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती रहेगी, right? So again, remember कि spoken is all about making sentences, thinking, speaking. एंड यहाँ पे आपको जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो धीरे धीरे आपको स्ट्रॉन्ग करना है, वो ये करना है दैट यू आर थिंकिंग इन हिंदी। ओके, थिंकिंग इन हिंदी, आपको ये स्टॉप करना है कि हम हिंदी में सोच रहे हैं, एंड फिर सोच के फिर उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं, फिर ट्रांसलेट करके सेंटेंस समझ रहे हैं कि अब यहाँ पे कौन सा सेंटेंस आना है। सो व्हाट यू हैव टू डू, ये जो आपकी थिंकिंग, हिंदी वाली थिंकिंग है, इसको थोड़ा थोड़ा सा इम्प्रूव करके हमको इंग्लिश में स्टार्ट करना। व्हाट डू वी मीन बाय कि इंग्लिश में स्टार्ट करना है? इट सिंपली मीन्स कि जो सिचुएशंस हैं उनको ध्यान में रख के यू हैव टू थिंक directly in English, and you have to make sentences directly in English without translating them. ओके, सो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लग सकता है, या हो सकता है कि आपको एकदम से क्लिक हो जाए कि हाँ, I have understood all the situations that I need to situations like these, and then you are directly मेकिंग सेंटेंसेस। डायरेक्टली का सेंस समझ रहे हैं ना, कि कभी ऐसा होता है कि दैट फॉर एग्जांपल आपसे क्वेश्चन पूछा कि वेयर वर यू यस्टरडे इन द इवनिंग। सो यहाँ पे पहले हमने इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया, वेयर वर यू yesterday in the evening. All right, then you understood the meaning, and now you want to answer this question. So first you are thinking in Hindi and then you are translating. ओके, ऐसा भी होता है, ऐसा भी बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं। ओके, लेकिन स्टार्टिंग में जब आप बहुत डिफिकल्टी हो रही है, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, सो देन इट्स ओके, लेकिन फिर उसको धीरे धीरे कम भी करना है। फिर हमको उसकी हैबिट नहीं डालना कि हम हमेशा ही ऐसा कर रहे हैं, दैट ऑल द टाइम फर्स्ट यू आर ट्रांसलेटिंग इट इनटू हिंदी एंड देन अंडरस्टैंडिंग, एंड देन वो डायरेक्टली आपको ट्राई करना। that if someone says that I didn't have time yesterday, so as you heard this sentence, I didn't have time yesterday, so just get the meaning of this sentence. What is the meaning of this sentence? Paying attention to the structure. Okay, attention जब आप देंगे structure पे, I didn't have time yesterday, what does it mean? Okay, you understood? All right, that's very well. Okay, if you want to ask question to someone, did you have time yesterday? Okay, so according to the situation, you are talking about yesterday, you are talking about time. Did you have time yesterday? Okay, so yes, I had time yesterday. No, I didn't have time yesterday. All right, I was very busy yesterday. Yesterday, I had to complete my work. Yesterday, I had to complete my assignment. Yesterday, I had to attend.
one party yesterday. I had to go out with my friends. Okay, so when you are thinking, right, so वहां पे आपको clues मिलेंगे, hints मिलेंगे, ideas मिलेंगे, दूसरे sentences भी आएंगे वहां पे. But for that, you need to think like this. You need to make sentences. Okay, and today जो हमने आज daily routine करा है, this is very important, right? And ये भी थोड़ा practice से आएगा. Okay, and इसमें आपको super comfortable होना है. And don't think कि यहाँ पे हमको इसको याद करना है. ओके, याद करने वाला लैंग्वेज में कोई भी पॉइंट नहीं. ओके, डोंट थिंक दैट देयर इज एनीथिंग दैट यू हैव टू मेमोराइज. ओके, नथिंग इज हियर where you would try to memorize something. So everything is about understanding, right, and then use it. So जितना ज़्यादा आप डेली रूटीन, हो सकता है फर्स्ट टाइम में, सेकंड टाइम में आपको थोड़े से सेंटेंसेस सोचना पड़े कि ओके, अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको सेंटेंस में मुझे कैसे बोलना है. अब मैं फिर इवनिंग में क्या करती हूँ, मुझे सेंटेंस क्या बोलना है. जब आप फर्स्ट सेकंड टाइम ट्राई करेंगे थोड़ा सा ऐसा हो, लेकिन जब आप ट्राई करते रहेंगे तो नेचुरल हो जाएगा. बट बिकॉज आपने इतना ज़्यादा यूज कर लिया है उसको, सेंटेंस को इतना ज़्यादा बोल लिया है कि विल कम ऑटोमेटिक. एंड लैंग्वेज में यही होता है, जितना ज़्यादा आप यूज करेंगे, जितना ज़्यादा आप उसको बोलते रहेंगे, उतना ज़्यादा आप उसमें कंफर्टेबल होते रहेंगे. ओके, सो दिस इज समथिंग यू हैव टू कीप ऑन. ओके, सो आपके लिए आज की जो प्रैक्टिस होगी वो यही होगी कि think of different sentences related to routine, related to habit. Right now, you have to think of positive sentences, and there are two situations: one with singular subject, one with plural subject. Apart from that, you have to think of your daily routine, and then you have to talk about your daily routine. Okay, and you have to record yourself, and then you have to see that आपका डेली रूटीन आप कितने कंफर्टेबली यूज कर रहे हैं. ओके, एंड एक बार मिस्टेक हुई, दो बार मिस्टेक हुई, थर्ड फोर्थ टाइम में तो वो आराम से आ जाएगा. लेकिन उसके लिए ये थर्ड फोर्थ टाइम तक आपको ट्राई करते रहना पड़ेगा. ओके, एंड यहाँ से वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, एंड अभी आपको क्या करना है, जब भी आपको टाइम मिले, ओके, प्रैक्टिस कर लेंगे. ओके, ट्राई करके देख लेंगे. एंड रिमेंबर, जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो आपको कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करना है. ओके, एंड अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में भी स्प्रेड करिए मैसेज. एंड एज यू नो दैट अदर क्लासेस भी चल रही हैं. ओके, सो उन क्लासेस की भी वीडियोस आप अपने फ्रेंड्स को बता सकते हैं. आप खुद भी देख सकते हैं. if you want to learn about any of the other subjects, you can do that. Okay, so spread the message and practice. Okay, all right, and we are going to meet in the next class. Till then, bye bye, take care.